Okay, good afternoon. So slowly you people are joining. So till now, I started today a new topic I'm going to start soon when all the students will come. So before this, let me tell you what the things I taught you. I started the subject geotechnical engineering. There, first of all, I defined the term what is soil and soil in views of different, occupants. Suppose geologist is there, how he is thinking about soil, agriculturist is there, what is the view of civil engineer, all these things we studied. Then I told you about different applications of uh, soil engineering, applications of soil engineering, where generally it is used. And mostly it is mostly it is used in foundation. Mostly uh, it is used foundation. That only I told you. Apart from different applications also I told you. Then after applications, basic properties in detail I told you. Basic properties in different means what is water content. From there I started. What is White's ratio? What is porosity? What is degree of saturation? Uh, all these things I taught you. All these things I taught you. And many density, bulk, weight, specific gravity, many all basic properties I defined with their notations. I hope all things are very clear to you. Then important 13, 14 I think all derivations I did. Those important derivations I did. And after doing all these derivations, then I solved, after doing all these derivations, then I solved near about 35-40 problems. So यहाँ तक मैं आपको पढ़ाया. See, first chapter is very important. Maybe I am taking maximum things to you, but once you understood this first chapter very perfect, no. Second, all the other chapters are, that much not important. Means they are important, but you can easily understand. तुमको easily समझ में आता. So देखो, और देखिए आप जितने प्रैक्टिकल करते हो उसके 50% प्रैक्टिकल फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड है. So in practicals also, of course, मैं आपको करके नहीं बताया अभी. That also I will show you by recording the things. लेकिन मैं आपको बताया क्योंकि वो किए हुए थे आपके, बहुत सिंपल था. एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी था, दूसरा वाटर कंटेंट था. That also I told in detail. Apart from this, अभी इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ. और this time in the new syllabus, that is BTech syllabus, TY BTech, तो 8 यूनिट्स नहीं है. Now only 6 units are there. Earlier it used to be 8 units, है ना. आपको जनरली 7 या 8 हुआ करते थे, जनरली 8 हुआ करते थे. But this time only how many units? 6 units are there. और फर्स्ट यूनिट्स में मैं अब तक जो पढ़ाया आपको, इसको छोड़ के आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किस मेथड से आप प्रैक्टिकल करते हो वो बताना है. फील्ड डेंसिटी कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से कैसा करते हो वो बताना है आपको. तो इतना करे तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाता है. तो प्रैक्टिकल है वो तो प्रैक्टिकल क्लासेस में लूंगा मैं आपको. और दैट दोस थिंग्स विल बी वेरी क्लियर. तो यू कैन से दैट नाउ फर्स्ट यूनिट का आउट ऑफ 6 फर्स्ट यूनिट का नियर अबाउट 60-70% सिलेबस हो गया. हाँ, मे बी दूसरे सभी सब्जेक्ट के ज्यादा भी हो गए होंगे, बट आई एम गोइंग स्लो. स्टिल टाइम इज देयर. आई वांट यू टू बी परफेक्ट इन द फर्स्ट चैप्टर. तो अब बचा क्या है आपको, जो एक दो प्रैक्टिकल्स है वो मैं आपको बता दूंगा, वो प्रैक्टिकल सिलेबस में कवर हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम स्टार्टिंग. Today a very important topic I am starting, and that one that is called consistency of soils. Consistency of soils or Atterberg limits. Consistency of soils, Atterberg limits, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब. जो बेसिक प्रॉपर्टी आपको बहुत क्लियर रहना. तो उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिक्विड लिमिट, what is plastic limit, and what is shrinkage limit. What is liquid limit, what is plastic limit, what is shrinkage limit. ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे.
यस यस बद्री, सेकंड नहीं, फर्स्ट चैप्टर में सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ आज। अभी एक दो तीन प्रॉब्लम आपको बचे हैं, उतना करा के टुडे 12 आई विल स्टार्ट कंसिस्टेंसी। अभी सभी आ रहे हैं इसलिए मैं जरा वेट कर रहा हूँ। तो याद रखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप पास का फेल का सोचो ही मत, पास फेल बहुत इजी चीज है, उसके बारे में दिमाग मत खराब करो। हमको सब्जेक्ट सीखना है इसलिए सीखो आप। तो आपको मैं आप जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आज कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स है क्या आखिर। तो कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या होता है कि पानी है, सॉइल है, अगर से हम सॉइल में पानी डालते जा रहे पानी डालते जा रहे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, that we are going to study today. And it is called Atterberg limits. A Swedish engineer was there who invented all these things. So on to give him honor, on his name only these limits have been kept, and these limits are also called as Atterberg limits. तो अब तक इतना सिलेबस हो गया, अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा क्या, कुछ डिफिकल्टीज है तो प्लीज शेयर विथ मी चैट करके, मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। रही बात नोट्स की, तो मैं बहुत जल्दी आपको, बहुत अच्छे नोट्स है मेरे, स्लाइड्स से भी अच्छे, मेरे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोगों को बहुत कंप्लेंट है मुझे पता है, लेकिन इससे भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे हुए मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ। और बुक्स भी मैं आपको याद ही नहीं दिलाते आप लोग, मुझे आपका वो पूरे क्लास का ये नहीं मिल रहा, तो बुक भी आपको मैं अरोरा का भेज दूंगा। तो इसके लिए देखिए मुझे बहुत सारे काम रहते, आपको पढ़ाने के बाद और डिपार्टमेंट के काम रहते, तो आपको भी टच में रहना, मुझे पूछते रहना, तो इट इज योर ड्यूटी आल्सो आफ्टर द क्लास। तो इसके अलावा आपको अब तक मैं जो पढ़ावा, वट एवर द थिंग्स आई टॉट यू, आपको कुछ डाउट है या मेरा टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको, स्पीड ज्यादा है कम है, या अभी प्रॉब्लम्स तो बहुत करा रहा हूं मैं आपको, आप इतने प्रॉब्लम्स करें तो मोर देन इनफ है। और मैं थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो जा रहे, दो तीन चैप्टर अब तक होना था, तो उसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं स्लो जाऊंगा। अभी ये चैप्टर करा के इसके गेट के क्लासेस, इसके गेट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, गेट में कैसा पूछा, हम इजीली वी विल कंप्लीट। एक बार फर्स्ट चैप्टर होने दो, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। सेकंड चैप्टर तो बहुत छोटा है, हम लोग एक या दो हफ्ते में हम 5-7-8 पीरियड में सेकंड चैप्टर कर सकते हैं। अब करीब करीब 34-35 क्लास हो गए, तो भी फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ, जबकि सेकंड और थर्ड चैप्टर हमारे 7-7 या 8-8 पीरियड्स में हो जाएंगे। तो इसीलिए आप, क्योंकि यही सब बेसिक उसमें रहता, और ये आप अच्छी तरह समझे ना तो वो इजी होता। तो वंस अगेन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू कि अटेंडेंस पास फेल इससे ऊपर आओ आप, ये कोई उतने मायने नहीं रखते, आपको अटेंडेंस भी मिल जाएगा, आपको पास भी हो जाओगे, आपको डिग्री का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेकिन आप सब्जेक्ट नहीं सीखे तो वो किसी काम का नहीं। तो अब तक आपको क्या चीजें क्लियर करनी चाहिए, मैं एक बार और बोलता हूँ। सॉइल का डेफिनेशंस देखो अच्छी तरह, सॉइल के एप्लीकेशंस देखो, सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल के एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सॉइल के एप्लीकेशंस वो आप नोट कर लो। उसके बाद सारे डेफिनेशन पढ़ो और सोचो वाटर कंटेंट बोल तो क्या, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स ये कैसा रहता, हाँ, टू फेज सिस्टम क्या है, थ्री फेज सिस्टम क्या है, उसके बाद वाइड्स रेशियो क्या है, पोरोसिटी क्या है, वाइड्स रेशियो पोरोसिटी में रिलेशन क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाटर कंटेंट क्या है, हाँ, एयर कंटेंट क्या है, परसेंटेज एयर वाइड्स क्या है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ पर यूज होता, मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पर यूज होता, फिर इन सब में रिलेशंस कहाँ है। इन सब में रिलेशंस के बाद, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, मैं जो प्रॉब्लम कर रहा है ऑलमोस्ट ऑल सभी प्रॉब्लम में लिया हूं, उसको सॉल्व करो। फिर भी आपको एक्स्ट्रा कुछ और प्रॉब्लम करने हैं तो करो, हाँ, तो मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसको भी सॉल्व करो। तो यहां तक आपका, तो फर्स्ट यूनिट में 3 पोर्शन है, तो पहला पोर्शन हो जाता अब तक का। उसके बाद दूसरा पोर्शन बड़े मुश्किल से मैं आज या कल खत्म हो जाता, आज शुरू करूंगा तो कल खत्म हो जाएगा दूसरा पोर्शन, और तीसरा पोर्शन भी अगले वीक, मतलब अब आगे कोई उतना आपको मुश्किल नहीं जाएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आई वोंट टेक दैट मच टाइम, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स नो those things easily you can understand. Please in chat box if you write, if you want any improvement from my side, or if you need any help, any suggestions, आपको कुछ बोलना है तो बोलो, या मुझे व्हाट्सएप करो या मुझे फोन करो, whatever the things, but what is my रिक्वेस्ट टू यू इज, ये पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, बेसिक लेवल से स्टार्ट है, इसको डिटेल में पढ़ो, जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ो और सॉल्व करो।
Okay, so today after doing 2-3 problems, प्लीज डोंट गो, और अच्छी तरह से आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उसको अच्छी तरह से सुनो. नाउ टेल मी, anybody is having notes, which was the last problem? Okay, thank you Sonali, थैंक यू वेरी मच बेटा. अब मुझे ये बोलो कि लास्ट प्रॉब्लम कौन सा था. लास्ट प्रॉब्लम कौन सा करा था? अभी 1-2 प्रॉब्लम बचे, उतने कंप्लीट करेंगे हम, या कंप्लीट हो गए? आगे बढ़ू मैं? 41 नहीं हो गया होगा मेरे ख्याल से. अभी 1-2 41 42 43 3 प्रॉब्लम्स है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो मैं पीछे से आता हूं, चलो 43 से ही स्टार्ट करता हूं. लिखो इसको. द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चन. द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी of a fully saturated specimen, the mass specific gravity of a fully saturated specimen of clay, the mass specific gravity of a fully saturated specimen of clay having a water content of 40%, having a water content of 40% is 1.88. The mass specific gravity of a fully saturated, the mass specific gravity of a fully saturated specimen of clay having a water content of 40% is 1.88. mass specific gravity है और soil fully saturated है, तो S is equal to 1. water content दिया और gm दिया 1.88. on oven drying, on oven drying, the mass specific gravity drops to 1.74. On oven drying, the mass specific gravity drops to 1.74. On oven drying, the mass specific gravity drops to 1.74. Calculate the specific gravity of clay and its shrinkage limit. छोड़ दो, ये अभी मैं नहीं पढ़ा आपको, आज शुरू करूंगा, इसको बाद में करेंगे. Calculate the specific gravity of clay. Calculate the specific gravity of clay. This is engineering services examination 1992 के है. और याद रखो, गेट के क्वेश्चंस में अभी इस चैप्टर पे कुछ भी नहीं कराया. एक बार चैप्टर खत्म होने दो, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके अलग से, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं बैठ सकता. मैं गेट के सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे पूछा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पिछले 10-12 साल के. अभी मैं सॉल्व नहीं किया उसको, और एमसीक्यूज भी नहीं दिया मैं आपको, बट एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू. यू नीड नॉट वरी, जस्ट टू वर्क हार्ड. एक बार और लिखो. द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले having a water content of 40% is 1.88. is 1.88. On oven drying, the mass specific gravity drops to 1.74. mass specific gravity ज्यादा था, फिर कम हो गया. Calculate the specific gravity of clay. जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो देखिए, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए. प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन लिख लो, और ये थोड़ा अलग टाइप का है. लिख लो क्वेश्चन, जरा हट के आइए. लिख लिया बेटा? Okay. Now, first mass specific gravity is given. It is 1.88. So this is for saturated soil. याद रखिए, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन चेंज होते रहता. या सॉइल, देखिए,
एक बार मैं और फिर बोलता हूं आपको, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्क क्या है। जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसको हम सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, वहां पर हम वैल्यूम को कंसीडर नहीं करते जो वाइड्स के हैं, जबकि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में सारा वैल्यूम लेते। लेकिन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू, ड्राई है तो ड्राई बाय गामा डब्ल्यू, सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड बाय गामा डब्ल्यू। ऐसा डेफिनेशन बनता मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में। हाँ, तो देखिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम इज गिवन बाय फॉर सैचुरेटेड सॉइल गामा सैचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू, and this is equal to 1.88. This is equal to 1.88. Okay, but what is the water content here? Water content is 40%, so saturated water content is 0.4. देखो ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के किया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन का है। ओके, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारे पास, गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये जनरल फॉर्मूला है, आपको पूरे फॉर्मूले पता होना चाहिए। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू को एलएचएस ला लो, तो गामा सैचुरेशन बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा सैचुरेशन बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। And but we know that from the definition, that is gamma saturated by gamma W is equal to 1.88. 1.88, तो यहां पर ये G plus E divided by 1 plus E is equal to 1.88. This is equation number 1. यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज, यहां पर तक कुछ डाउट है तो पूछो। एक बार मैं फिर बोलता हूं, फर्स्ट केस में सॉइल सैचुरेटेड है, इसलिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन बनता गामा सैचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू। और लेकिन ये कितना है, ये आपको दिया हुआ है 1.88। उसके बाद वाटर कंटेंट दिया सैचुरेशन में 0.4, लेकिन गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला है गामा सैचुरेशन इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो गामा डब्ल्यू को इस तरफ ला लो, गामा सैचुरेशन बाय गामा डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। बट फ्रॉम हियर गामा सैचुरेशन बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.88. So gamma saturation by gamma W is equal to G plus E divided by 1 plus E. This is equal to 1.88. This is equation 1. This is equation 1. Now we know that E is equal to omega G by S, general formula. At saturation level, S is equal to 1. Do you agree? For fully saturated soil, S is equal to 1. So now when S is equal to 1, E saturation is equal to omega saturation into G, but omega saturation is given 0.4, so E saturation is equal to 0.4 G. This is equation 2. This is equation 2. Now what do? You substitute the value of E, that is 0.4 G, that is the 0.4 G in equation 1. Therefore 1.88 is equal to G plus E की जगह 0.4 G रखो, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.4 G रखो, इसको सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट G इज इक्वल टू 2.90. तो व्हाट इज G? G इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। प्लीज लिख लो इतना, यहां तक G निकालने तक कुछ डाउट है तो पूछो। पहले आप डेफिनेशन डिफाइन करो, उसके बाद गामा सैचुरेशन में गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.88 लाओ इक्वेशन 1, E इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखो, बट S इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो E सैचुरेटेड इज इक्वल टू ओमेगा G और E सैचुरेटेड इज इक्वल टू 0.4 into G. This is equation 2. So substituting equation 2 in 1, we get 1.88 is equal to G plus 0.4 G divided by 1 plus 0.4 G. सिवाय G के हर चीज मालूम है आपको, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, आप कैलकुलेशन करो, करके बताओ मुझे G is equal to 2.90. इसके बाद भी कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। G is equal to 2.90. If you have any doubt, you can ask please.
G is equal to 2.90 और हमको चाहिए क्या पूछा ना क्वेश्चन में, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्ले। हाँ इतना ही पूछा ना। हाँ इट्स श्रिंकेज लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट मैं बाद में बताता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो G इज इक्वल टू 2.90, G इज इक्वल टू 2.90, G इज इक्वल टू 2.90। G is equal to 2.90। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। तो इस तरह हम G का वैल्यू देखिए, ये इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन बनाना, इसको इक्वेट करना, ये सब इतना आसान नहीं है, थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो G is equal to 2.90। things are clear now? So now I will go for 42nd क्वेश्चन। ये भी शायद नहीं हुआ होगा, लिख लो प्लीज। A soil sample whose water content is 20%, a soil sample whose water content is 20% has a bulk density of 2.16 gram per cc. A soil sample whose water content is 20% has a bulk density of 2.16 gram per cc. A soil sample whose water content is 20% has a bulk density of 2.16 gram per cc. The sample undergoes air drying. The sample undergoes air drying with insignificant change in White's ratio. Means White's ratio change नहीं हो रहा। पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं बाद में समझाता हूं आपको। The sample undergoes air drying with insignificant change in White ratio. What is the air drying मतलब ड्राई होगा। What is the water content of this sample? What is the water content of this sample when its bulk density is reduced to 2 ग्राम पर सीसी। रिमेंबर ये लास्ट के 2-3 प्रॉब्लम में जो आज करा रहा हूं आपको, ये हाई स्टैंडर्ड के है, ये सभी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता होगा, ऐसे यूनिवर्सिटी में इतना मुश्किल शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी आपको करने आना चाहिए। A soil sample whose water content is 20% has a bulk density of 2.16 gram per cc। वाटर कंटेंट दिया और रो दिया, उसके बाद उसको ड्राई करें हम। ड्राई करने के बाद व्हाट इज द वाटर कंटेंट ऑफ दिस सैंपल व्हेन इट्स बल्क डेंसिटी इज रिड्यूस्ड। जब हमको एयर ड्राइंग करें तो इसका जो डेंसिटी है वो कम हो गया, डेंसिटी 2.16 से 2 ग्राम पर सीसी हो गया, 2.16 से 2 ग्राम पर सीसी हो गया। तो नाउ व्हाट इज द वाटर कंटेंट, तो जब डेंसिटी कम हो गया उसका वाटर कंटेंट कितना है, उसका वाटर कंटेंट कितना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। प्लीज करो, जरा सोचो, देखेंगे आप लोग। रो दिया, दूसरा रो इसको ग्राम पर सीसी में दिया, उन्होंने केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा, तो गामा फाइंड आउट करा 9.81 से मल्टीप्लाई करके, तो गामा इज 21.19। करो प्लीज। Do it please.
यस प्लीज ट्राई। डिफिकल्ट है ये प्रॉब्लम, लेकिन करना तो है ही है। डिफिकल्ट है बोल के छोड़ नहीं सकते आप। And once again, message is there. So please, those who are having backlogs, no, आपके सीसी आपको गूगल शीट दिए होंगे, उसमें आप प्लीज ये करो, फिलअप करो आपके जो भी बैकलॉग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करो, खूब बैठते, इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों को। एनीबडी आंसर? देखिए, somebody has did value of G is 2.65 we have to take. Okay, value of G is needed here, beta. No, G को ऐसे ही रखना है। G नहीं दिया बटा, यही तो मुश्किल है यहाँ पर। G नहीं दिया, G डोंट अज्यूम द G, बगैर G को लिए हुए आपको करना है। G दिया तो बहुत इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दो केसेस दिया ना। देखिए पहले केसेस में रो इज इक्वल टू 2.16 ग्राम पर सीसी है, इसको किलो न्यूटन पर मीटर गामा में कन्वर्ट करो, तो गामा में कन्वर्ट करने के लिए केजी पर मीटर क्यूब में करो, फिर ये आता गामा में 9.81 से मल्टीप्लाई करो, तो 21.919 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके सोनाली, वेरी गुड सोनाली, नजदीक तो आई। तो ये गामा होने के बाद गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। गामा इज 21.19, वाटर कंटेंट इज 20%, 1 प्लस 0.20, तो गामा डी मिल जाता आपको 17.6583 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डी इज इक्वल टू 17.6583 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वंस यू नो दी गामा डी, ई मालूम कर सकते हैं हम, ई इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस 1, तो इससे आपको इक्वेशन मिलता 1 प्लस ई इज इक्वल टू 0.55 जी। दिस इज इक्वेशन 1। और एक जनरल फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। तो यहां पर वो क्या करा, 1 प्लस ई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, जी जी गेट कैंसिल्स, एक्सेप्ट डब्ल्यू ऑल अदर थिंग्स आर नोन, so nearly 12% is my answer. प्लीज ये सब टफ क्वेश्चंस है, नोट कर लो, इसको लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। लिख लो प्लीज। तो आपको E इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस 1 इक्वेशन से 1 प्लस ई निकालना है, और 1 प्लस ई निकालने के बाद ओके दिव्या राइट, 1 प्लस ई निकालने के बाद ये गामा का जनरल फॉर्मूला यूज करना है, और यहां पर गामा मालूम है आपको 19.62, और जी जैसे का तैसे रखो, जी जी गेट कैंसिल्स, यू विल गेट 12%, you will get 12%, near about, maybe little bit more or less chances are also there. तो मैं आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम कराया, इससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसके बाद भी अभी कुछ आपके क्वेश्चंस है तो आप भेज सकते हैं, मैं सॉल्व कराता हूं।
एवरीथिंग आई एम गिविंग यू रेडीमेड। अब बचा क्या, सिर्फ मुझे आपको इस टॉपिक के गेट्स के क्वेश्चंस कराने हैं सभी। तो ये मैं पूरा चैप्टर यूनिट होने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से लूंगा। जिसको गेट में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग नहीं आ सकते, जिसको इंटरेस्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड आई एश्योर यू एंड प्रॉमिस यू, अगर से आप इंटरेस्ट बताएंगे तो जीटी में आपको यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ साथ गेट का भी पूरा सिलेबस करा दूंगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। प्लीज, इट इज अप टू यू, यू हैव टू शो द इंटरेस्ट। और एक बार और बोल रहा हूं मैं आपको, शायद आपके सीसी का नोटिस आया होगा, जिस किसी के भी बैकलॉग्स है, गोल्डन है, जो भी है, आपके सब्जेक्ट जो आपको शीट दिया हुआ रहेगा उसमें भर दो और अपने सीसी को कांटेक्ट करो। गोल्डन वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज वो जल्दी अपना काम कर दो, फिर गाड़ी छूट गई तो मुश्किल होता। तो ऑल ऑफ यू, जो भी आपके दोस्त है किसी भी सेम के, आपके सीनियर जूनियर, मैं बी, जो बी के बच्चे निकल जा रहे हैं उनका सीसी हूं मैं, तो सभी को बोल दो आप कि जिस किसी का भी कोई बैकलॉग है तो वो अपने सीसी को पूछो और उसमें पहले रजिस्टर कराओ आपका। लिख लिए, कंप्लीट करो। तो नाउ आई थिंक ये क्वेश्चन हुआ क्या नहीं, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से 40 तक हो गए शायद ना, पता नहीं तुम लोगों ने रिकॉर्ड भी नहीं रखते कितने हो गए कितने नहीं, क्या नहीं, चुप ये हो गया मेरे ख्याल से। चुप आते, नोटबुक भी हाथ में रहता नहीं, पता नहीं क्या क्या करते रहते। चुप, हम चिल्ला चिल्ला के टीचर लोग परेशान होते रहते, तो मजे लेते बैठ के। 41 नहीं हुआ, ओके ओके, दिस द लास्ट प्रॉब्लम आई थिंक। You take down this one, and after this please note down, I am starting a very very important topic, and that topic is consistency of soil और अटरबर्ग लिमिट्स। आज मैं आपको डिटेल में बिल्कुल बेसिक से बहुत स्लो और उस टॉपिक को आज समझाने वाला हूं मैं, उसको मिस मत करो आप प्लीज। तो आपको देखिए डेफिनेशन याद रख, रट रट मार के लिखना अलग चीज है, लेकिन आपको उसको समझना अलग चीज है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ओके। टेक डाउन दिस क्वेश्चन और उसके बाद ये ब्रेक में ट्राई करो इसको। दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अब टाइम मतलब बहुत करें हम, 43 प्रॉब्लम्स करें, इट इज मोर देन इनफ, इतना कोई भी नहीं करता। अब प्रैक्टिस करो पूरे। टेक डाउन द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉइल, the mass of 1 centimeter cube of soil in its natural state is, in its natural state is 1.81 gram. The mass of 1 centimeter cube of, इसके बाद रुक जाता, ब्रेक ले लो। The mass of 1 centimeter cube of soil in natural state is 1.81 gram. If its mass is found to be 1.5 gram, 1.54 gram after drying, it has a specific gravity of 2.7. बहुत सिंपल है ये। Determine wide ratio, porosity, degree of saturation, water content as it existed in the natural soil. सब आपको दिया हुआ है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये। मैं आने तक करके रखो इसको, मतलब ब्रेक के बाद। The mass of 1 centimeter, वॉल्यूम दिया आपको 1.81 ओरिजिनल मास है, उसके बाद ड्राई मास है 1.54, जी दिया 2.7, आपको निकालना है व्हाट इज ई, व्हाट इज एन, व्हाट इज एस, व्हाट इज स्मॉल डब्ल्यू। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम।